The life of an actor. There's always a debate around this. How do they live their lives? On screen, off screen. How is their personal life? What is their personal life? Uh, what has brought them to where they are? What is the definition of an actor? We'll be talking about this and a lot more today with Shruti. So, hi Shruti. Hello. Welcome hello, to the Joy. show. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me. It's a pleasure. And to begin with, I think we should continue the conversation that we were having before we Okay. started Okay. rolling the cameras. Okay. Tell me. So we were having a debate or an argument or however we would like to put It's it. called a discussion. Discussion, Just yeah, a yeah. discussion. What is the definition of an actor according to you? Because you asked me this question, Said, so I'm asking you. Okay, I don't know, to be honest. What is the definition of an actor? What does an actor do? An actor pretends to be someone else in front of camera. Right. We're trying to create truth. We're trying to somehow make you believe that this fictional person that the writer and director has thought of is real. Right. So it's just make believe. Correct. I'm trying to live somebody else's life, be someone else. That is an actor. Right. Someone who creates truth, someone who brings fiction to life on film for you. So you can believe that and go on a journey with them. Right. That is And an actor. how would you differentiate a good actor and a bad actor? When the believability is believable, when you believe everything they do on screen to be true. When you watch them and see कि ये जो भी हो रहा है मैं इसको मान सकता हूँ, तो वो अच्छा एक्टर है. तो आपके हिसाब से बैड एक्टर जो कौन वो है सच विद नहीं- एग्जाम्पल? विथ एग्जाम्पल आई देखिए क्या है ना कि आप अच्छी चीजें याद रखते हैं जिंदगी में. तो आप मेरे को मेरे- पता था आप कुछ हाँ, ऐसे ही आंसर तो दोगे. अगर आप मेरे से पूछोगे अच्छे एक्टर्स कौन है तो मुझे वो याद रहेगा बिकॉज वो सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए. अच्छा. वो बिलीवेबल रहा मेरे लिए. तो वो सरप्राइजिंग. व्हाई हाँ. सरप्राइजिंग? यानी कि सब- there is yeah. dearth of I'll good tell you- actors in India. No, that's not the point. So why is it surprising? It's surprising because you are in awe of the fact that, oh my God, this is so real. But that's how आप- it should be, right? Always. Yes, that's how it should be. लेकिन आप टिकट खरीदते हैं ना. Correct. आप जाते हैं थिएटर में देखने, आपको पता तो है सबकॉन्शियसली कि ये सच तो नहीं है, जी. लेकिन आप फिर जी. भी अगर उसमें खो जाते हैं, हाँ. फिर भी अगर आपको वो एक्सपीरियंस होता है तो आप सरप्राइज भी तो होते हैं ना अंदर. तो वो अगर आप स्ट्राइक करता है आपको तो वो अच्छी चीज है, वो आपको याद रहती है. अच्छा. बुरी चीज की उतनी रिटेनिंग क्वालिटी नहीं है, एकदम सही बात है ना. एकदम. कोई वो आप पॉपकॉर्न खाएगा निकले यार क्या बुरी पिक्चर देखी यार, देन यू फॉरगेट अबाउट इट. बट कभी कभी कुछ बहुत बुरा होता है तो हमें वो याद रहता है, चाहे वो हमारे लाइफ में हो या चाहे वो पर्दे पे हो. तो ऐसा कुछ ओके चलो लेट्स स्टार्ट विथ यू. आप मेरे- बताओ जरा, व्हाट वाज द लास्ट फिल्म दैट यू सॉ एंड यू थॉट ओ माय गॉड दिस इज सो बैड. You're putting me on the spot. Really? Yes, Is that yes. happening to you? How does it feel? Have you ever done this? No, actually किसी ने मुझे नहीं ऐसे स्पॉट पे भेजा. So you're the first Okay, one. welcome then. But I'm actually enjoying it Great. because So tell मेरे me. को सोचने का मौका मिल रहा है. Okay. बुरा फिल्म. I have seen a couple in the last few months, but I'm forgetting the name of the Yeah, film. see that's what happens. We've मैं all नाम seen भूल bad जा रहा films, but because they don't leave an impact on you, you don't tend to remember them. Right. है But ना? there are some films which are really, really bad and we think, अरे ये क्यों देख लिया? वो सिर्फ मेरे को याद ही नहीं आ रहे. Exactly. So this is what happens. But I'll still tell you, I think there was this film, I think Race 3 or something. Yeah. Oh God. Oh fuck. यार क्या picture है? I think that is a work of art. Yeah. मतलब That is a work इतने of art. Plot Yeah. twists. Like there should be a separate category of movies कि they are so bad that they are good. Absolutely. Yes. You know, that you will बिल्कुल. watch them for fun. So yeah, I think there's a lot of these films that you watch them for the fact that, you know, they're just like, they're good because you watch them and it's fun. Hum Shakals. You remember Hum Yeah, Shakals? even मैं प्रेम की दीवानी हूँ. If you have seen that, I don't even seen that. Of course I've seen it. Yes. Of course I've seen it. But I Have you still seen see it on Khushi? TV every time. I've Have you seen seen Khushi as Khushi? well. Yes. Oh yes. wow. But ये सब फिल्म है टीवी पे आने से मैं तो देखता हूँ हाँ, मतलब. मैं भी है ना वो मैं भी। कैसे मतलब वो देखने में भी लगता देखने है. में भी मजा आता है कि यार ये लोग सोचो ये एक्टर्स का काम कितना डिफिकल्ट होगा. हाँ. ये लाइंस
उनको सीरियसली बोलनी पड़ रही है, वो बंदा खुद भी तो हंसी रहा होगा ना वो पढ़ के कि ये क्या बोलना है यार जाके। Exactly, yeah. So, यार So, that's the job. तुम्हारे अंदर ये कब आया कि तुम्हें इस प्रोफेशन में जाना है? ये हो गया लक बाई चांस या प्लान्ड था कि यही करना है? यार देखो इतना प्लान्ड तो नहीं था मैं। आई एम नॉट अ वेरी planning person because half the time the things I plan don't go according to plan. So it's an effort in vain. But I've been dancing since I was 4. Okay. I'm an Indian classical dancer. So I always knew that I will do something that is on stage, that will include some sort of performance or something. So I was doing Kathak before, then I started doing Odissi. Then after finishing school I was like क्या करूं अभी, मतलब कुछ तो करना है मगर क्या करना है पता नहीं। अब मुझे आर्ट्स लेके पढ़ाई नहीं करनी थी बिकॉज बहुत पढ़ना पड़ता, साइंस लेके पढ़ाई नहीं करनी थी क्योंकि उतना दिमाग ही नहीं है, तो कुछ बीच का ढूंढना था। तो आई थॉट कॉमर्स ले लेती हूँ, ईजी हो जाएगा। अभी मैंने कॉमर्स ही किया था 11-12 में। फिर उसके बाद आई डिडंट नो बिकॉज मुझे, और प्रॉब्लम ये थी कि मेरे कॉमर्स में अच्छे मार्क्स आ गए थे। अच्छा। 12th में ठीक ठाक नंबर्स आ गए थे। तो पापा को लग गया कि अब तो MBA कर लेना चाहिए। कौन से बोर्ड में थे आप? CBSE। अच्छा। तो डैड को लगा कि कॉमर्स बैकग्राउंड है, ये अगर MBA कर लेगी, मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं तो सोचो पर मंथ क्या सैलरी मिलेगी। और मैं भाग रही हूँ कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, किताबों का साइज देखा है। तो देन आई थॉट कि मैं कुछ एक्टिंग कर लेती हूँ, कुछ ये डांसिंग कर लूंगी। तो मॉम ने सजेस्ट किया कि आप पुणे जा सकते हैं, वहाँ आप कोर्स कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। बट पूना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स था, तब उसके लिए तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी पहले। अब मैं परेशान, ग्रेजुएशन क्या करूँ। सो आई हैड माई मदर इज अ क्लासिकल सिंगर, शी इज अ singer. So she had a friend who used to be a tabla player who used to teach at Ravindra Bharati University. Okay. So he said कि okay she wants to do something, उसको बोलो यहाँ नाटक सीख लेगी, उसका फिर अच्छा रिहर्स भी हो जाएगा, अच्छा सीख लेगी अच्छे से। चलो कम से कम पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा, कर लेते हैं। तो मैंने रविंद्र भारती ज्वाइन कर ली। अच्छा। सो देन आई डिड माई ड्रामेटिक्स, माई बैचलर्स, माई BA in dramatics. Wow. Yeah. And I did my master's in theatre direction. So which also means you got a lot of support from your family, which is how it should be. Touch wood. Which is definitely how it should be, but normal is not normal these days. So also then what is normal? Yeah. But no, come on, yeah. You can't. This is support from family should be normal. Should be normal. Should Absolutely be normal. Yes. But yes, I have to say that my family, like my mom and dad, because they never told me कि तुमको नौकरी करनी है, तुमको ये काम करना है। They were all, because also my mother's a singer, she's an artist. Correct. She understood. Yeah. So they were always like कि तुमको ये करना है तो तुम करो, but make sure you do it well. Right. And make sure you do it. It shouldn't be a thing कि तुमने 1 साल किया, अब तुमको बीच में छोड़ दिया, ये नहीं करना है। तो तुम सोच लो तुमको करना है तो करो। And till date, in terms of the fact कि आपको शादी करनी है या आपको नौकरी करनी है, वो जो कॉमन प्रेशर्स होते हैं ना, वो नहीं है मेरे घर से। तो that has absolutely been a blessing. तो बहुत अच्छा चीज है। हाँ. मतलब और सच में ऐसा ही हर घर में होना चाहिए। Yeah. It's also because my parents had a love marriage. They were in love in school. मतलब 11th standard से they started dating, then they got married also. So I've grown up in an environment that didn't have any gender roles. Like I didn't see कि मम्मी ही खाना बनाती हैं और पापा ही ऑफिस जाते हैं। ये जो जेंडर रोल्स होते हैं ना घर पे, मेरे घर पे नहीं थे। वाओ। जो काम जिसको करना है वो करता है। मतलब डैड बेटर खाना बनाते हैं, तो अगर घर पे खाना बन रहा है, कुक नहीं है, तो जनरली डैड बना देंगे। Like my mother, because she has a BP issue and all, so she doesn't wake up early in the morning. Right. So dad has been the one who like makes the kids ready for school and all of that. So I did not grow up with that setup कि there is a structure to this. कि ये तरीका है काम करने का, कि लड़कियां ऐसे करती हैं, अब आपकी उम्र हो गई है शादी की, या And how liberating was it like? Absolutely. I had no pressure कि these are the kind of clothes you should be wearing, or these are the kind of clothes you shouldn't be wearing. These are the kind of friends you should be having, or these are the kind of friends you shouldn't be having. या मुझे कभी ये नहीं बताया गया कि because of my gender there's something I shouldn't do. I shouldn't do something because it's not good for you as a person. How beautiful is that? Yeah. So that is something I always give to my parents, that they have brought me up in an environment which led me to be who I am.
to take more informed and liberated decisions in life. Yeah. So then उसके बाद आपने जब पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश कर तो लिया, मैंने then जब उसके बाद- मास्टर्स खत्म किया तो फिर तभी भी मुझे लगा कि नाटक ही कर रही हूँ, अच्छा खासा ही चल रहा है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, अच्छा, फिर मैं डांस भी करती थी Right. प्रोफेशनली। हाँ, तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां है, और क्या, और कोई महत्वाकांक्षा थी नहीं मेरी। हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभार थोड़े बहुत एक्टिंग कर लूंगी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एक्ट्रेस बनना है और मुझे पर्दे पे आना है, मुझे बम्बई जाना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ बट था पैसे नहीं। कमा रहे थे, कितना ही कमा लेते हो आप थिएटर करके। वही मैं इसलिए मैं हाँ। पूछा। मैं थिएटर करती थी, फिर उसके बाद जब मैं I think in my last semester in my masters I started doing a little bit of production work in TV serials. Okay, right. Because you need the cash, right? Yes, obviously. Yes. And yes. फिर मैं थिएटर क्लासेस लेना शुरू किया था मैंने, वर्कशॉप्स करा रही थी मैं, little bit of voice over work here and there, Right. little bit of event management also at that time. So you're keeping your hands full. I was keeping my hands full. Absolutely. I never liked being answerable to anyone. So I realized that if I'm dependent on money, on my parents, I'll always be answerable to them. Correct. Because they'll ask me कि बेटा ये इतने पैसे आपने कहाँ खर्च किए, या आप कहाँ जा रहे हैं, आप कितने बजे वापस आएंगे। ये गलत बात नहीं है, लेकिन as a person, I was never someone who liked to answer. So I knew that if I'm financially independent and if I am doing something that is keeping me occupied, I'm not answerable to anyone. Right. And that's the kind of life I've always liked. Until date, I want to live my life on my own terms. Right. That's just a personal thing. But that's again how it should be. Yeah. Anyway. नहीं, हमारा लाइफ किसी और के बोलने पे क्यों चलेगा, मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगेन as I just said ना, ये सब चीजों को नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, जो कि गलत है। patriarchy, these things have been normalized for centuries and exactly conditioning है for years and years and years, and we are supposed to live in a certain way, think in a certain way, do a certain thing. So all this has been conditioning for ages and ages. Correct. तो उससे वो एक्चुअली वो अवेयरनेस तक पहुंचना ही मुश्किल है ना, कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। जी। जब तक आपको समझ में आता है तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। और बहुत समय अगर आप लोगों को समझाते भी हो या समझाने की कोशिश करते हो, लोग समझना भी नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि they don't know anything else and people like to be in their comfort zone. Yeah. So that's a weird situation. Anyway, so where were we? Graduation complete हो गया, you were doing a lot of jobs, earning a lot of money. Not a lot, just a handful. But the thing is, उस वक्त खर्चा भी कितना ही था। हाँ, ये बात भी सही है। And how long back are we talking about? This is 2016. Okay. तो खर्चा भी तो उतना था नहीं जिंदगी में। Correct. मैं बस से ऑटो से ट्रैवल करती थी, थिएटर ग्रुप्स में अब क्या ही कितना ही कर लेंगे। यू आर हैविंग मूडी, यू आर हैविंग चाय, यू आर हैविंग चॉप, हाँ है ना। तो लाइफस्टाइल भी उतनी कुछ एक्सपेंसिव थी नहीं। जी, सही बात है। तो चल ही रहा था सब मजे से। एंड आई वाज लिविंग विद माय पेरेंट्स, सो इट्स नॉट लाइक आई वाज पेइंग रेंट और इलेक्ट्रिसिटी और आई वाज पेइंग फॉर माय क्लोथ्स और एनीथिंग। वो तो हो ही रहा था घर पे। तो बाकी जो मेरा जो हाथ का खर्चा था वो तो चल ही रहा था, वो तो निकल जाता था। चल रही थी जिंदगी अच्छी खासी। फिर आई थिंक मैंने जब पोस्ट ग्रेड्स खत्म किए, मेरा मास्टर्स खत्म हुआ, फिर मैं थिएटर ही कर रही थी। एज सीनियर ऑफ माइन इन्फॉर्म्ड कि विस्क्राफ्ट इंटरनेशनल इज डूइंग अ बॉलीवुड म्यूजिकल इन दुबई एंड दे आर लुकिंग फॉर एक्टर्स। And I was like, who's going to go to Dubai? Actors don't go to Dubai. I'm in Calcutta. I'm doing very well. I'm an intellectual person. I'm not going to do all of this. So I said, no, there's nothing like that. Not going to happen. तो मैंने उनको टाला, कुछ 3-4 महीने उनको टाला। फिर he kept pestering me so much. So I thought कि अरे यार, मैं ऑडिशन दे देती हूँ, कम से कम ये बंदा मेरे को बोलना बंद कर देगा कि ऑडिशन कर दे। सो मैं गई, कुछ प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। ओ हाँ, इसके बीच में मैंने NSD के लिए अप्लाई किया। अच्छा, ओके। तो वो टाइमलाइन मैच नहीं हुआ था, तब तक मैंने यहाँ MA शुरू कर दिया था। वहाँ मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, लेकिन वर्कशॉप में जाने के लिए टाइम लग रहा था, तो मैंने वो परस्यू ही नहीं किया फिर। लेकिन ना उसका आई थिंक आई हैड द material that they give you with a couple of scripts in it to prepare. So I had that old material. यहाँ से एक मैं मोनोलॉग याद कर लेती हूँ। मैंने वहाँ से एक मोनोलॉग याद किया। And because I was a dancer, so I was like, बजा दो म्यूजिक, नाच दूंगी। और with no expectation and no preparation,
I went in, gave my audition. They said sing. I said I'm a bad singer. Do you want to go through that? They said हाँ okay. So I sang also. So I have nothing to lose. So And you don't have stage fright and all of that. वो सब नहीं I है. was dancing since I was 4, right? So that must have gone completely. हाँ, you put me on stage, I'm very comfortable. Okay. मुझको मजा आता है. मतलब buffoonery is a hobby. Okay. So anyway, so मैंने कर दिया audition और मैं वापस अपनी जिंदगी में लग गई क्योंकि कोई expectation ही तो नहीं है कि I'll get a call back or anything. Correct. So मैं खुश. 1-1.5 महीने बाद वहाँ से कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप बम्बई आ जाइए, यहाँ वर्कशॉपिंग होगी और फिर उसके बाद अगर आपका फाइनल्स में नाम आ जाता है तो आप दुबई जाने के लिए सिलेक्टेड हैं. मैंने डैड को बताया कि देखो ये क्या मजाक हो रहा है. तो डैड वाज लाइक कि तुमको जाना है कि नहीं जाना है. मतलब पागल है क्या, कौन जाएगा. हाँ, बकवास के 1 हफ्ते के लिए वर्कशॉप के लिए दुबई जाऊं, मतलब मैं बॉम्बे जाऊं बेकार में, कोई मतलब ही नहीं बनता. राइट. बिकॉज अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैंने 1 हफ्ता बर्बाद किया ना. पैसे भी खर्च हो रहे हैं मेरे. एकदम सही बात. आई हैव टू गो एंड टेक अप अ प्लेस. सो आई रिमेम्बर डैड टोल्ड मी, सुन ना, तेरी उम्र कितनी है, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, गो फॉर अ हॉलिडे. अच्छा. Wow, yeah. Again, such a nice thought. Yeah, it was like, go for a holiday. You don't have to spend anything. We have a relative living in Bombay. You go and live with them for a week. And कितना ही खर्चा आएगा तेरे फ्लाइट का, उतने पैसे तो तेरे पास भी हैं, मेरे पास भी हैं. तेरे को नहीं कर रहा, मैं खर्चा कर देता हूँ. चली जा, 1 हफ्ता घूम के आ जा, तेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप. ऐसा सोच के मैंने बोला ओके, पॉइंट तो है. Sounds good. इसमें तो कुछ गलत बोल नहीं रहे पापा. मैं बोला चलो चली जाती हूँ. तो मैं चली गई. अब वहां भी जाके बॉम्बे में सारी लड़कियां इतनी तैयार होके, मतलब सारी मॉडल्स और सबके मतलब परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेयर, परफेक्ट स्किन, और मैं तो थिएटर टी-शर्ट और जीन्स में गई हूँ. तो मुझे लगा कि मेरा तो नहीं होने वाला, कोई चांस है नहीं. 3 दिन का वर्कशॉप है, मजे कर लो, बॉम्बे घूम लो, खाना वाना खा लो, वापस. तो आई वॉज लिविंग हियर विद अ कजन ऑफ माइन. शी सेड कि अच्छा तू सीरियस नहीं है तो फिर ठीक है, चल तू अपना वर्कशॉप करके आ जा, फिर उसके बाद बम्बई घूमेंगे. मैं सवेरे जाती थी, वर्कशॉप करती थी, शाम को बॉम्बे घूमती थी. जुहू गई, मैंने पानी पूरी खाई, इधर उधर मजे कर लिए मैंने 1 हफ्ते. फिर आई थिंक द लास्ट डे ऑफ द वर्कशॉप जब हो गया तो फिर शी वाज लिविंग इन महालक्ष्मी, आई रिमेम्बर. And I had to take a train from Mahalakshmi to Andheri West. That's where. Yeah, Andheri West. और फिर वहां से ऑटो लेना पड़ता था जहाँ पे रिहर्सल्स हो रहे थे उस जगह के. अच्छा. एंड रिहर्सल खत्म करी, सबके साथ चाय वाय पी, ऑटो ली, स्टेशन गई, ट्रेन लिया, महालक्ष्मी उतरने वाली हूँ कि मुझे वहां से कॉल आता है कि मैम आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कल आ जाइए, आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी होगा, आप टर्म्स पे बात कर लीजिए, फिर अगले महीने हम दुबई के लिए निकलेंगे. ओह शिट, ये तो हो गया, अब क्या करूं, ये तो मेरा प्लान ही नहीं था. और तब तक मैं कुछ 4 या 5 नाटक कर रही थी ऑलरेडी कैलकाटा में. उनके शोज लाइंड अप थे. मैं सोचती हूँ यार मैं इनको कैसे मना करूं, ये तो गलत से आपा कर लिया मैंने. तो फिर मैं घर आई, मतलब फिर मैंने टर्म्स डिस्कस किए उनसे, एंड द मनी वाज रियली गुड. मनी वाज, लेट्स जस्ट नॉट से हाउ मेनी टाइम्स मोर इट वाज देन व्हाट आई वाज मेकिंग. हाउ मेनी डिजिट्स? अ फ्यू. नहीं, वो ऐसे फ्यू नहीं हो सकता. अभी मैंने अंदर ही बोला ना, सही बोलना है. 6 था, 7 था, 8 था. लाख 6 में होते हैं ना? लाख 6 में होता है. हाँ, तो 6 में थे. अच्छा, ओके. तो कुछ 6 थे. यस, ठीक है. तो आई वाज लाइक कि थिएटर करके तो ये पैसा मैं नहीं कमाने वाली. सही बात. और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए. तो मैंने सोचा कि 2 साल चली भी जाऊंगी तो क्या ही हो जाए. अच्छा, 2 साल के लिए था? 2 साल के लिए था. अच्छा. इट वाज अ रेसिडेंशियल प्ले, और उस प्ले के लिए एक अलग से थिएटर बनाया गया था. राइट. या एक ऐसा कुछ किंगडम ऑफ ड्रीम्स बोल के भी, किंगडम ऑफ ड्रीम्स इज इन दिल्ली, नोएडा में शायद. नोएडा में. सो इट्स उसी तरह का कुछ है क्या? It's the same format. They were doing it in Dubai. Right. There was an amusement park called Bollywood Park. अच्छा. वहाँ पे उन्होंने एक अलग से थिएटर बनाया था. Okay. It was a 800 seater theater जो उन्होंने इस शो के लिए स्पेसिफिकली बनाया था. Wow. Yeah.
विराफ जो CEO हैं विस्क्राफ्ट के, he was one of our directors. There was Hidayat Sami, there was Pankaj, who were our stage directors and design directors. We trained under Shamak for about a year for all the dancing parts, and it was a proper Bollywood musical. मतलब मेरी एंट्री गाने पे होती थी, फिर उसके बाद सीन, फिर उसके बाद हीरो हीरोइन के बीच में डांस, प्रॉपर मतलब it was a completely new experience from what the life I was living here. तो फिर वो कर लिया मैंने. उसके बाद कुछ 2-2.5 साल बाद जब मैं वापस आई कैलकटा, तो कैलकटा का फिर मुझे लेट्स से the work culture and the kind of money that I was being offered at that time and the kind of roles that I was getting at that time was not very lucrative to me. I didn't find it very interesting. So, and I had made more contacts in Bombay at that time. So I was like, fine, let me make a move again. Let me go to Bombay. Right. So and this is again when 2019. This is 18 and 19. Okay, ठीक है. So I moved to Bombay and मैं बॉम्बे गई, वहाँ पे कुछ जो दोस्त बने थे उनसे मिली, बातचीत की, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना शुरू किया और लॉकडाउन हो गया. Okay. और मैं कुछ 2 साल के लिए फंस गई बॉम्बे में. अच्छा, okay. हाँ, बिकॉज अब तो वापस नहीं आ सकती. Right. बिकॉज जो पहला 1-2 महीना था वही आपके पास टाइम था फ्लाई आउट करने के लिए. उसके बाद तो फ्लाइट्स बंद हो गई थी. करेक्ट. और वो 1-2 महीना मैं ये सोचती रही कि ये अभी बोल रहे हैं 3 हफ्ते, अभी बोल रहे हैं 4 हफ्ते, तो ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. बट वो 2 साल चलेगा ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं. तो मैं वहां रुक गई और मैं सोच रही हूँ कि ये तो अजीब प्रॉब्लम है जिंदगी में कि अब आई एम लिटरली लॉक्ड इन दिस हाउस in this new city that I've known for just about a year, not even a year properly. And but I had a lot of fun. मैंने गार्डनिंग किया, मैंने योगा शुरू किया, मैंने वर्कआउट शुरू किया. 2 साल बड़े मजे किए मैंने अपने घर में. I have a very cute flat in Bombay. It's a 1 BHK with a lovely balcony. And then after the lockdown, I started working in Bombay a little bit. I did a series with Imtiaz Ali for Sony Live. I'd done another series for Zoom earlier. Started doing a lot of ads, started doing theatre in Bombay. And then one fine day, I get a call from Mr. Srijit Mukherjee. Him I had met before I shifted to Bombay. अच्छा, okay. बिकॉज मैं जब दुबई से वापस आई थी तो डैड के एक फ्रेंड हैं, वो उनकी भी फ्रेंड हैं. अच्छा. तो मैंने उनसे गई थी, मैंने कहा आप किसी से मिलवा सकते हैं क्या, कि थोड़ा काम करना है मुझे. तो उन्होंने बताया कि ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे मिलवा सकता हूँ, आप देख लीजिए आपका कुछ बनता है. तो मैंने उनको कॉल किया और कहा कि सर मैंने आपका काम देखा है, मैं आपके साथ काम करना चाहूंगी, सर आ जाओ SVF ऑफिस, मुझसे मिल लो. मैं गई, मैंने वो पिक्चर्स लेके जाते हैं ना, मैं प्रॉपर पिक्चर्स लेके गई लैपटॉप में. उन्होंने देखा एंड देन ही वाज लाइक ठीक है, कुछ होता है तो मैं तुमको बताऊंगा. ठीक है. तो मुझे लगा कुछ बताने वाले हैं नहीं, ऐसे 100 लोगों से मिलते होंगे, ये पिक्चर्स देख के उनको पसंद आए नहीं होंगे, तो ये सेट के घर चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला. तो मैं तो बॉम्बे चली गई. तो 3 साल बाद अचानक उनका कॉल आया मेरे पास कि मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ X = प्रेम, और मैं चाहता हूँ कि आप ये लीड जो पार्ट है कर लीजिए, आप कल आ जाइए, मुझसे मिल लीजिए. मैं तो बॉम्बे में हूँ, मैं तो कल नहीं आ सकती. तो 1-1.5 हफ्ते बाद मेरा प्लान बन ही रहा था कैलकाटा आने का घर. तो फिर मैं आई, मैं उनसे मिली. और ये लास्ट ईयर का बात है या 2022 the film released. अच्छा. Yeah, 2022 the film released. We shot it in 2021. Okay. Yeah, so that's how it's been. Great. What a wonderful journey. Yeah, कुछ भूल भी गई होंगी तो पता नहीं. तो अब अभी आप where are you standing now? Are you right now in Calcutta or are you like moving in and out of Calcutta? I am perpetually moving in and out of Calcutta and Bombay. Because now I live in Bombay, I have a home there, I have adopted a cat over there, I have a friend circle there, I work there, and I work here in Bombay, in Kolkata, and I have my family here. तो हर महीने कुछ 15-20 दिन मेरे यहाँ कटते हैं. अच्छा. तो मुश्किल भी है काफी. मतलब the other day only I think we were at an event, we were at the premiere of this film Alap that released, and a friend of mine asked me, so where are you at the moment? I said, I'm at the airport with a suitcase, and you tell me which city you need me, I'll just be there. So it's a bit of a Banjara life, really. I am trying to spend a little bit more time in Kolkata at the moment.
because I'm ending up spending more time here. I have to stay away from my cat, and that's not very nice. So And who's looking after your cat? When he's you're- with a friend now. Okay. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1-1.5 महीने में I can bring him here. Acha. Obviously, yeah. हाँ. You can't live without your babies. Yeah, exactly. I can bring him here and I can spend more time here. And of course, I'm traveling to Bombay whenever I have work and I have a place there. तो ये तो जाना आना लगा ही रहता है. तो बॉम्बे में कहाँ घर लिया है? वर्सोवा, यारी रोड. अच्छा, तो वहाँ पे 1 BH के लिए 1 BH के लिए रखा है. तो कितना रेंट लगता है? हाय, I pay 48 for a 1 BHK. Oh my God. और कितना बड़ा है वो फ्लैट? It's a decent size. It's around 700 square feet. For a 1 BHK, it's not bad. Got a big hall. I've got a decent balcony, which is a luxury in Bombay. The kitchen and bathrooms the same? No, why would it be the same? I know it's not the same. Yeah. Because that's how it is in Bombay. No, not really. Yeah, I'll tell you one experience of mine. Okay. So मैं बॉम्बे गया एक बार फ्लैट हाँ. देखने. हाँ. So I was very new to Bombay. I had no idea कि रेंट का क्या सीन है वहाँ पे. मुझे लगा, and this is 2015-16. So मुझे लगा जैसे कलकत्ता में 10,000 में 1 BHK मिल जाता है, तो मैं उस सेंस में गया. वो भी कहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ? सेंटा क्रूज वेस्ट में ढूंढ रहा हूँ. ठीक है. dear Lord. तो उन्होंने दिखाया भी मुझे कि ठीक है, बट वेस्ट नहीं है, ईस्ट है. ठीक है. The completely different ball game, huh? I know. So west is like the place and east is all धारावी, ये वो सब उधर, कलीना वगैरह सब उधर ही है. So मैं गया. अब वहाँ पे it was the SRA का जो फ्लैट होता है, वो SRA का फ्लैट था. तो वो गया मैं, रिहैबिलिटेशन वाला. तो जब मैं घुसा तो वहाँ पे एक रूम था. There was just one room. Yeah. And साइड में छोटा सा एक दीवार का डिवीजन था वहाँ पे. तो मैंने बोला कि ये तो ठीक है, इसमें बेडरूम का है. बोला नहीं, बेडरूम नहीं है, जो है यही है. लाइक पहले मेरे लिए तो वही एक रूट शॉक था. तो फिर मैंने उसके बाद बोला कि ठीक है, किचन कहाँ है? बोला ये जो दीवार दिख रहा है यहाँ पे किचन स्टोव बना के खाना कर लेना है. और मैंने बोला फिर वेयर डू आई टेक अ बाथ? बोला संडास बाहर है, लेकिन नहाना देखो ऊपर शावर लग रहा है, किचन में ही आप नहा सकते हो. सो दिस इज रियलिटी. And this is not just with me, this happened with so many of my friends in Bombay जो गए हैं, जो इस रेंज में ढूंढ रहे हैं, all of that. Then मैंने realize किया कि ये तो बहुत difficult हो जा रहा है. And I come from an army background. My father is in the army, was in the army. So हम लोग army quarters में रह के बड़े हुए हैं, you know, huge quarters and all of that. And suddenly मैं वहाँ से यहाँ पे आ गया, तो मेरे लिए वो बड़ा शौक था. फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है. फिर मैंने अपना बजट बढ़ाया 15. तो वहां पे जब रियलाइज हुआ कि अभी भी संडास बाहर ही है, बस किचन थोड़ा और बड़ा है. ऐसे धीरे धीरे बट मेरे को सेंटा क्रूज वेस्ट में ही रहना था. और मैं जहाँ रह रहा था वो रेड चिलीज ऑफिस के पीछे है. सेंटा क्रूज वेस्ट में जो रेड चिलीज है, यहाँ पे स्टारबक्स भी है, उसके पीछे मेरा. फिर मैंने फाइनली घर लिया. वो भी बिल्डिंग कभी भी टूट जाए. But were you sharing with someone? I was staying alone. Oh, you were staying alone. Yeah, I wanted to stay alone. This is which year? 15-16. तब मेरे को फाइनली 30,000 में जाके एक 1 BHK मिला. Exactly. So because 15,000 में आपको रहने के लिए जगह मिल जाए बम्बई में. और मीरा रोड में मिल सकता है. हाँ, मीरा रोड में मिल सकता है, लेकिन मीरा रोड बम्बई नहीं है. I know. Exactly. तो ये तो मुश्किल है. तो ये इसीलिए मैंने इसलिए पूछा. बट हाँ, 48,000 में I'm sure अच्छा मिला होगा. एक महीना लगा था मुझे ये घर ढूंढने के लिए. Because I remember this very funny incident. जो ब्रोकर मुझे दिखा रहा था घर, मुझे उसने एक दिन कॉल किया कि मैडम आपके बजट में एक सी फेसिंग घर है. अच्छा. मैं बोला अच्छा, आपको 40,000 में सी फेसिंग घर मिल गया? हाँ मैडम, ये इधर जू बैक रोड में मिल रहा है मेरे को, आप आ जाओ आज, मैं आज ही दिखाता हूँ. मैं तो सपने लिए चली गई कि मेरे को सी फेसिंग घर मिल रहा है जुहू में. हाँ, वो मैं सोच रही हूँ कि एक सेकेंड, इसको जुहू बैक रोड में सी फेसिंग घर कैसे मिल रहा है? जुहू रोड पे मिल रहा है, तारा रोड पे मिल रहा है, समझ रही हूँ मैं. बैक रोड पे कैसे मिल रहा है? तो चलो ठीक है, बोल रहा है, मैं जाती हूँ. तो बिल्डिंग की तो हालत खराब. आप घर में घुसते हैं, एक ऐसा हॉल है, इस तरफ बेडरूम है, फिर किचन है, किचन से होके पीछे एक बेडरूम है. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं क्या करूं इस चीज का. फिर उसके पीछे एक वॉशरूम है और हॉल में एक वॉशरूम है साइड में, कोने में. अजीब सी चीज है. मैंने बोला ये तो ठीक है, लेकिन ये समुंदर कहाँ है? मैं आप खिड़की के पास आइए ना, थोड़ा झुकिए, गर्दन उस तरफ कीजिए, उधर ही है ना समुंदर. मतलब ऐसे एक स्लिवर ऑफ द सी यू कैन सी. आप खिड़की से बाहर निकलिए, फिर ऐसे झुकिए ना, फिर उधर देखिए, वो दिख रहा है ना आपको समुंदर.
I was like, भैया तो आपने तो मजाक कर लिया मेरे साथ दोपहर को. Since you've been part Yeah. of both the cities, you Yeah, know, yeah. which city is a more livable city, and which city is better in terms of work? I think I know the answers, but I still would want to ask you. In terms of work. work. See, for me, Kolkata, I can never take it out because there's a certain amount of love for the city. I've grown up here. My parents are here. I'm a Bangali. I'm very Bangali. So that love for Kolkata is not going to go. But the kind of person I'm Bombay person. I like the lifestyle where things are available to you all the time, where life is fast. Yes, you're stuck in the traffic most of the time, but you get the job done. Yeah. People are more professional. There's more value for time and money. I feel that could be a problem, a little bit of a problem here, because the work culture here is a bit intimate, is a bit homely, bit informal. So then things Correct. सही बोले आप. things can take time, things can be easy, things can be laid back, things can be like, oh, we're thinking of casting her in this film but she's not here. Oh, who's available? She's available. Nah, yeah, she's decent, we'll take her. But that's not going to be the case in Bombay. There's going to be like, oh, I want to cast you in my film, you're not available, we'll work around the dates, we'll try to do this, and we'll try till the point we can do this or we decide we can't do this. Right. But we will try. Here we will go for an option which is convenient. Now that is a problem. Right. And also obviously the pay scale. Now the pay scale is also because you're working so much in a city like Bombay and you're professional, you're expected to bring something on the table. We are all putting in work. So there is value for your time, for your effort. But यहाँ पे इतना ज़्यादा informal हो गया है तो आपका financially also, economically also आप बढ़ नहीं रहे हो आगे. है ना? सही बात है. So it's a chain reaction. It's like that. But to answer your question, which city do I prefer? I'm going to have to say both. I really will have to say both because I get a taste of both all the time. There are sides of me as a person which caters to both. Because you're almost simultaneously living in both the cities. Yeah. So you can actually say both. Yeah. Because क्या होता है ना कि अभी मैं पिछले 1 महीने से कैलकाटा में ही हूँ. Because I was shooting for a series. फिर मेरे को कुछ और फोटो शूट्स वगैरह भी मेरे खत्म करने थे. तो वो करके मैं ये 2 तारीख को शायद मैं वापस बॉम्बे जाऊंगी. I know what difference it's going to be in my lifestyle. I was so laid back and lazy and things over here कि अच्छा कल का शूट है अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कब कल करेंगे. है ना? Life भी शायद यहाँ more comfortable होगा ना. With your house being there and all. Yeah, my house being there. I have really old friends over here. There's a lot of grounding that happens to me in this city. Right. There's also the fact that people know me in this city because of the last 2 films that I did. Yeah. And Bhalabashar Mushroom being a hit. So if I'm taking a cab or if I'm going out, 5 people will notice. That's not the case in Bombay. So the liberty of living in Bombay is much higher. Right. है ना? एक तो वो चीज़ है और ऊपर से खुली रहती हैं चीज़ें. बहुत ज़्यादा safe है. Which is your favorite place in Bombay? Like area in terms of going and chilling? So my favorite place is my house. अच्छा, okay. And my balcony with my cat. लेकिन मेरे घर के बगल में एक छोटा सा कैफे है, बर्मेचा हाउस नाम है उसका. There's this actor called Rajat Barmecha. If you've seen Udaan. Yes. So he's absolutely. He's a dear friend and it's his cafe. मेरे घर से 2 मिनट दूर है. तो हमारे काफी सारे दोस्त जो हैं हम शाम को या दोपहर को वहाँ इकट्ठा होते हैं. जेटा कहने अड्डा है ना, तो the same thing happens there. We'll all just sit there and we'll chat and about anything. We can talk about dhania to movies to a geezer to anything. We can talk about anything, and that community, that friendship and that place is one of my favorite places to be in Bombay. Right. But otherwise, I like to travel to eat. Like I'll go to Haji Ali to eat or Borivali. There's a famous juice center called Bunty Juice Center. वहाँ पे हर तरह की पिक्चर के जूस मिलते हैं. मतलब अगर पठान रिलीज हुई है तो पठान जूस मिलेगा आपको. वो ग्लास पे पिक्चर लगी होगी शाहरुख खान की and all of that.
ऑल ऑफ दैट इज फन. तो ऐसी काफी जगहें हैं. कभी ऐसे बॉम्बे में रहते रहते कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ फ्रस्ट्रेशन सा लगा है कि क्या हाँ, कर रही हो? बहुत बहुत बहुत. बिकॉज इनिशियली क्या होता था, कोई तो जानता नहीं है आपको, तो आपने फ़ोन नंबर्स इकट्ठा कर लिए हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के वगैरह वगैरह, और फिर आप उनको कॉल कर रहे हैं. इनिशियली तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता बिकॉज अननोन नंबर है, तो कोई आपको एंटरटेन ही नहीं करना चाहता. वो फिर उसमें वक्त लगता है कि आप रिपीटेडली हर हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में उनको कॉल करते हैं, तो एक बार कोई कॉल उठा लेता है तो फिर आप बोलते हो कि आई एम दिस पर्सन, दिस इज व्हाट आई हैव डन, आई विल सेंड यू माय प्रोफाइल ऑन योर व्हाट्सएप, प्लीज लुक एट इट, एंड देन दे पुट you in their roster and then they contact you. There's so many hundreds of auditions that I've given and I haven't cracked them for various reasons. I've been told that we're looking for someone with a more convenient complexion. So basically you're saying that I'm dark. Someone who is a bit thinner, you see. So you're saying that I'm fat. I once got cast out of a film that's out now. That's with one of very popular actors. काफी मतलब बात आगे बढ़ गई थी, मेरे डायरेक्टर से बात हो गई थी, we were almost going to sign the contract, but I didn't get the part because the director thought that my forehead is broad. Okay. And the character shouldn't have a broad forehead. I was like, seriously, we can try a different hairstyle, or you can just tell me that I'm bad. Just tell me that I couldn't do the part, that I don't suit your part. Don't come up with an excuse like you have a broad forehead. But that happened. So there has been moments of frustration and thinking, okay, what am I doing and why am I even doing this? This doesn't make any sense. I can just go back to Calcutta and live with my family and Correct. be happy. Correct. तो ये थॉट को होल्ड या रेजिस्ट करने में कितना डिफिकल्टी होता है और कैसे करते हो? यार डिफिकल्ट तो होता है. खुद को क्या बोलते हो कि ये नहीं करना है या नहीं जाना है वापस, कैसे बोलते हो? बिकॉज कुछ ना कुछ हो जाता है. अच्छा, उसी वक्त कुछ ना कुछ हो जाता है. हाँ, मतलब उसी वक्त, मतलब उसके आसपास वही. हाँ, मतलब I believe, मतलब I'm not a very superstitious or religious person, but I do believe in energies. I believe in the fact that शाहरुख खान का डायलॉग है ना, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाती है वो उस चीज को आपसे, कि मुझे ये पता है कि मैं इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, मुझे कुछ और आता नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ तो मैं पेंटिंग करना शुरू कर दूंगी, या मेरे और 50,000 स्किल्स हैं, ऐसा नहीं है. मुझे यही करना है, मैं ये कर लूंगी, मुझे ये पता है. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ अलाइनिंग विद द राइट अपॉर्चुनिटी. और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अगर किसी ऑडिशन से रिजेक्शन भी मिला है, किसी ने अगर मुझे बोला है कि आप नहीं हो रहे हो फिट, ये नहीं हो रहा है, दे हैव गॉन विद अ बिगर नेम और दे हैव गॉन विद समवन एल्स, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम नॉट गुड इनफ. और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी शायद मेरे लिए नहीं है, बट आई शुड चेंज कोर्स और आई शुड स्टॉप डूइंग दिस और स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स. ये कभी मुझे फीलिंग आई ही नहीं. मुझे हमेशा ऐसा लगा कि इनको पता नहीं है, इनको क्या पता मेरे बारे में. मैं शायद इस अपॉर्चुनिटी से अलाइन नहीं होती, ठीक है, कुछ और आ जाएगा, और हमेशा कुछ ना कुछ और आया है. आ जाता है. So life will move on. It's just a flow of phases. It's, if A is not working for you, you'll get a B. So you don't have to decide in the moment कि अभी मैं ये छोड़ रही हूँ. You don't have to take such drastic steps. So when you get, say, bogged down, when you're a little disappointed, who's the first person you share? Nobody. You keep it to yourself. Yeah. Are you dating somebody? No. You've never dated? I'm sure that's not the case. Of course I have dated. So when was the last time you dated, or you were in a relationship? 3 साल हो गए इस चीज को. I think 2021 I broke up. Yeah. So now you're single for about 3 years. Yeah. Why did you क्यों break up किया था? Breakup, यार. Where was he from? Cal? He, she, they? He. Okay. He, very straight. Okay. He was from Goa. Okay. काफी बॉम्बे से बगल में ही है. कहाँ मिले आप लोग? बॉम्बे में मिले? जी नहीं, मैं गोवा में मिली उनसे. अच्छा, okay. मेरा पहला ट्रिप था गोवा. 3 of my other female friends, we had gone for a girls trip. कितना साल चला वो? 2 साल आई थिंक. 2-2.5 साल ऑन एंड ऑफ. लॉन्ग डिस्टेंस में जिस तरीके से होता है, मतलब गोवा टू बॉम्बे इज नॉट रियली लॉन्ग डिस्टेंस, 50 मिनट की फ्लाइट है. बट बीच में लॉकडाउन भी आ गया था. बीच में लॉकडाउन भी आ गया था.
और हमेशा टाइमिंग भी नहीं मैच कर पाती क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है, तो उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है, तो आप हमेशा टाइमिंग मैच करके कि मैं चली जाऊँ गोवा या वो आ जाए बॉम्बे, मुश्किल बात है। तो चल रहा था उस तरीके से, पर कुछ चीज़ें नहीं हुई, वर्कआउट नहीं हुई वो मैच हमारी। अभी भी वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर ऑन टॉकिंग टर्म्स, वी आर फ्रेंड्स, बट हाँ। Can you be friends with your exes? Absolutely, I'm friends with all my exes. Okay. So which was your most memorable relationship? In terms of, they're all memorable in their own way. In terms of, say, maybe where you think you were deeply in love, like most love. अरे always रे, Or always trust me, मतलब मैं तो I'm always, whenever I get into a relationship I'm always all in. मतलब मैं मंदिर बना दूँ इस इंसान का. you're a receiver, you're a giver. I'm a giver. You're a giver. Okay. अभी तक सबसे पागल चीज क्या किया है प्यार में? ऐसे कुछ पागल चीज नहीं थी. कुछ नहीं. लव लेटर्स वो भी तो पागल हो सकता है. नहीं, मैंने कभी नहीं लिखी, मुझे मिले हैं. ओके. तो कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया? स्पेशल मतलब क्या होता है? कुछ भी इन योर सेंस. मेरे लिए स्पेशल कुछ और हो सकता है. मैं अपना वाला तुम्हें कैसे बता सकूं? तुमने क्या स्पेशल किया है? मैंने ये गलत बात है, बातचीत हो रही है ना, तो तुम भी बताओ. स्पेशल एज इन कुछ सरप्राइज दे देना, कहीं घुमाने लेके चले जाना. ये तो कुछ स्पेशल है ही नहीं, ये तो बेसिक है. देखो ये देखा ना, मैंने इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है. मतलब अब स्पेशल क्या होता है एक इंसान के लिए? मतलब मैं किसी को डेट कर रही हूँ तो उसके लिए मैं अगर खाना बना रही हूँ तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, मुझे तो करनी ही चाहिए. या मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जा रही हूँ, या मैं सरप्राइज विजिट दे रही हूँ उसको, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आपको करनी चाहिए. किसी ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया है तुम्हारे हिसाब से? Yes, there was this person that I was seeing. वो उसको ना पता चल जाता था मेरा मूड कब खराब होता है. अच्छा. वो मुझे खाना भेज देता था. तो ये भी तो बेसिक है. नहीं, ये बेसिक इसलिए नहीं है. हाँ. कि ये चीज को समझना. हाँ. कि ये इंसान का मूड अभी इस तरीके से खराब होने वाला है. हाँ. और ये चीज खाने से इसको अच्छा लगेगा, और वो भेज देना बिना बताए, ये बहुत बड़ी चीज है. ये मैं 1 घंटा पहले ही समझ जाता हूँ. ये तो आप महान हैं. ये बेसिक नहीं है. ये आई थिंक ये हर किसी के अंदर ये इंस्टिंक्ट बाय डिफॉल्ट आना चाहिए. अगेन ये नहीं आता तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. बट दिस इज रियली नाइस, आई थिंक, यू नो, बिकॉज ये कोई नहीं करता. अगेन दीज आर बेसिक थिंग्स, बट सिंस पीपल डोंट डू इट, दैट्स व्हाई वी थिंक इट इज स्पेशल. सो इट्स आल्सो बिकॉज यार आजकल लाइफ भी तो इतनी ज्यादा बिजी है ना? हाँ जी, है ना? उसके बीच में सोच के टाइम निकाल के ये करना. तो मैं यही बोल रहा था कि बेसिक चीजें भी स्पेशल हो सकती है. बिल्कुल. So अभी आप सिंगल क्यों? I'll tell you. आप पहले बोलो. This guy that I was seeing, एक बारी क्या हुआ कि मैं शायद कहीं थी शूट के लिए. ये कहाँ से? ये कैल से है, बॉम्बे से? किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो आपके लिए खाना भेजता था. ये बॉम्बे से. अच्छा, ओके. ये this Goa guy I was telling you about. So I remember once I was not in Bombay and I was shooting somewhere else, and he had come to Bombay for some work, and he was staying at my place. तो क्रिसमस आ रहा था, एंड ही इज़ वेरी बिग ऑन क्रिसमस, एंड आई वॉज लाइक, आई एम सॉरी, आई एम शूटिंग, आई रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो उसने क्या किया, उसने मेरे घर पे क्रिसमस ट्री लगाया, अच्छे से डेकोरेट किया, प्रेजेंट्स रखे, और पूरे घर में ना उसने नोट्स रखे थे मेरे लिए छुपा के. That's special, right? That's so sweet. मतलब टीवी के ऊपर, रिमोट के ऊपर, वॉशरूम के मिरर के ऊपर, बिकॉज इंसान आता है बाहर से, टीवी चलाएगा, फिर वॉशरूम जाएगा. मुझे ग्रीन टी या कॉफी पीने का बहुत शौक है, तो उसने केटल के अंदर एक नोट रखा था. मैंने पानी डालने के बाद देखा ऐसे पेपर आया ऊपर कि अरे यार, ये आई अंडरस्टैंड रोमांटिक तुम्हारी कोशिश थी, बट व्हाटएवर. That was a really sweet thing that he had done. That is very nice. Yeah, that was very sweet. ये पहले कैसे भूल गए आप? सी इतनी चीजें हैं जिंदगी में, इतना सब कुछ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अभी आप सिंगल क्यों हो? कोई मिला नहीं, या कॉन्शियस डिसीजन है अभी? कुछ हद तक कॉन्शियस डिसीजन है जिसकी वजह से कोई मिला नहीं है, आई वुड हैव टू से, बिकॉज इससे पहले जो मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं उसमें मैं किसी को कुछ बुरा नहीं कहना चाहूँगी. कहना भी नहीं चाहिए. I mean, it's a partnership. If it has not worked out, then it's as much an onus of mine as theirs. Always. Absolutely. But since they have not worked out, I have observed some of my patterns. Okay, what I am doing wrong because of the choices that I'm making, or the kind of men that I'm choosing to be with. What are the
mistakes that I am doing repeatedly because of which the relationship is not working out. And then no breakup is nice यार. उसके बाद आप फिर वही डिप्रेशन साइकिल में चले जाते हैं. फिर वही आप बुरा लगता है आपको रोना धोना आइसक्रीम खाना क्यों करना है ये जिंदगी में, है ना. तो मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आई वांट टू बी सिंगल फॉर सम टाइम. आई वांट टू फिगर माय शिट आउट. आई वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई डोंट. एंड वंस आई एम क्लियर अबाउट the qualities that I absolutely do not want and absolutely want, I'm sure somebody who's aligned with that will come in. I'm sure. So अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है. तो इस दौरान आप डेट वगैरह पे जाते हो या आपने उससे भी खुद को कट? अच्छा, उससे नॉट रियली यार, बिकॉज क्या होता है कि एक तो हमारी जो प्रोफेशन है, जो जिंदगी है, उसका कुछ अता पता तो है नहीं. और मैं जिस तरीके से ट्रैवल करती हूँ, ऐसा वक्त दे पाना, इस तरीके से दूसरे इंसान के लिए भी समझना कि ये मोहतरमा कभी यहाँ है कभी वहाँ है, क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, इनको कभी कभी खुद भी नहीं पता रहता, तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो क्राइटेरियाज मुझे डेट करने के काफ़ी हाई है. कभी हुकअप किया है? कभी हुकअप हाँ किया है. ये ब्रेकअप के बाद किया होगा मोस्टली या दौरान? हाँ. तो वो फीलिंग, डिड यू एंजॉय दैट फीलिंग और वाज इट मतलब इट इज एन एंजॉयबल फीलिंग, दैट इज व्हाई यू हुक अप. No, I'm feeling like the afterthought, or were you like, no, I am not meant for hookups, or like I think it's part and parcel of the game? Okay, so you need to understand one, हम जब कोई ऐसी चीज करते हैं तो हम सोच समझ के ही करते हैं. बिल्कुल करते हैं. मतलब बेवकूफ तो नहीं है हम जिंदगी में, कोई नहीं है. तो और हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये डेटिंग है, ये हम एक ये हुकअप है, ये एक रिलेशनशिप है. और ये मेरे ख्याल में सामने वाले बंदे से ये कम्युनिकेशन क्लियर रखना भी बहुत जरूरी है. 100%, है ना. तो अगर आपको पता है कि ये कंपेनियनशिप ये एक हफ्ते की ही है, तो प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही बात है ना. एकदम. तो आप ओपन कम्युनिकेशन रखें. इट हैज टू बी कंसेंशुअल, इट हैज टू, यू हैव टू बी ऑन द सेम ग्राउंड. एंड उसके बाद two consenting adults, if they are hooking up and they are able to be friends or not be friends, that's up to them. There's nothing wrong with it. I don't think there's anything wrong with it. There's absolutely nothing wrong with it. So for anybody who's starting out in the industry or who wants to become an actor, what would be your one tip to them? Don't do it. Really? Yeah, don't do it. There are many other things. That was so motivational. Yeah, I know. I'm just being practical. See, the thing is, there are a lot of things in the world that you can do. You're just cutting off competition. No, I really am not. I'll tell you what the thing is. You only do it if you are 500% sure that you want to do this. Because this is going to come with a lot of patience that you will need, a lot of rejection that you will face, a lot of competition that you will have to fight. And once you come to a place where people start talking about you, a lot of people will start talking rubbish about you. रबिश ही ज्यादा बोलते हैं. मतलब आप कुछ भी कर लें उसके बारे में 4 आर्टिकल निकल जाएंगे, लोग आपको ट्रोल करेंगे. मतलब इजी बिल्कुल नहीं है. नहीं बिल्कुल भी नहीं है. और उसके ऊपर से ये काम ऐसा है कि आपको अपनी साइकोलॉजी के साथ यू हैव टू प्ले विद इट, राइट. यू आर ट्राइंग टू बी समवन एल्स. और ये सिर्फ प्ले एक्टिंग नहीं है, आपको बिलीव भी तो करना है, आपको सच्चाई क्रिएट करनी है. जी. तो आपको किसी और की जिंदगी जीनी है, तो आप ये चीज को सोच लें कि क्या आपको ये बंजी जंपिंग करनी है. अगर ये सब कुछ सोचने के बाद आपको लगता है कि मेरे को तो यही करना है, तो कर. और अगर आपको इन सब चीजों में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो कर सकते हो आप. यू डोंट हैव टू डू दिस. राइट. या एब्सोल्युटली. I'll take that, and I'm sure everybody who's watching it will also take that. Yeah, absolutely. See, you do it because you love it. That there is no other way. Right. So if you love it enough, do it. If you don't, then do something else. Nah, have fun. बहुत सारी चीजें दुनिया में करने के लिए. Have fun. Thank you so much, Shruti, for coming down, and I think we had a wonderful conversation. Thank you. बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना. That's great. Basic क्या है, special क्या है, acting क्या होता है. So I hope you had a good time too. Yeah, I had a great time. Great. I didn't realize कि हमने इतनी बातचीत कर ली. मुझे लगा अभी और बातचीत करेंगे. Well, part 2. Part 2. There should always be a season 2, part 2, है ना? होना चाहिए. Absolutely. Yes. So thank you so much, and it was a pleasure, and all the best to you. Thank you so much. Thank you.